Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the condition of banking of road. In previous two lectures, I have completed the derivations of banking of road. But in that derivation, this concept, condition of banking of road is left. So in this lecture, I am taking the condition of banking of road. So I suggest you to watch that two previous video before watching this video. So let us start this formula, these conditions of banking of road. So in banking of road we have seen, suppose this is the flat road, this is the flat surface and this is the banked road, makes an angle theta. Okay, vehicle is here. These are the two tires. Okay, and this vehicle will take turn on the left side. The road is curved on the left side. Okay, vehicle is curved road पे left side पे turn ले रही है. So obviously यहाँ पे क्या होगा? vehicle, this is the vehicle right side में skid होने की कोशिश करेगी. Okay, so at what maximum speed we can drive over this road so that vehicle can go without slipping, without skidding. This is the formula. हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से इस व्हीकल को चला सकते हैं जो कि व्हीकल स्लिप नहीं हो सकेगी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास स्पीड लिमिट है. स्पीड लिमिट मतलब क्या? फ्रॉम मिनिमम स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड. जब इस व्हीकल का स्पीड मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब सबसे कम होगा, तो क्या हो सकता है कि ये व्हीकल इस तरफ भी स्लिप हो सकती है. ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन यू कैन सी, सपोज इफ द रोड इज कर्व लाइक दिस, ओके, एंड इफ द रोड इज कर्व लाइक दिस एंड दिस इज द व्हीकल एट रेस्ट. व्हीकल अगर रेस्ट होती है तो क्या हो सकता है? इसको अगर छोड़ दिया, सफिशिएंट फ्रिक्शन इज नॉट देयर, तो ऑटोमेटिकली इट विल स्लिप इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा? व्हीकल का स्पीड बहुत ही कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट मच, दैट मीन्स ऑब्वियसली, एंड ड्यू टू विच एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियसली दिस व्हीकल में स्लिप्स इन दिस डायरेक्शन. तो व्हीकल को इस डायरेक्शन में भी स्लिप नहीं होने देना है, इस डायरेक्शन में भी स्लिप नहीं होने देना है. So to avoid slipping in this direction, vehicle should move with minimum velocity. This is the formula of the minimum velocity. Or the vehicle should not slip in this direction over this road. Okay, so the vehicle should move with some maximum velocity. So this is the maximum velocity. That means we should drive vehicle from minimum velocity to maximum velocity. The speed of vehicle should be in between minimum to maximum. When the speed of vehicle is less than this minimum velocity, this vehicle may slip down in this direction, and when speed of vehicle is more than this maximum velocity, then the vehicle may slip down on the opposite direction, in the right side direction. So we have to avoid slipping. So we should, again I am telling you, we should drive vehicle with a speed in between the minimum velocity to the maximum velocity. Okay, now so here I am telling you the condition of banking of road. So हमें क्या करना है? इस मिनिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू है तो सबसे कम होनी चाहिए. So how can you decrease the value of minimum velocity? मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू, उसका मतलब व्हीकल एक जगह पे रुके भी तो व्हीकल यहाँ पे स्लिप नहीं होनी चाहिए. ओके, व्हीकल का स्पीड बहुत कम होता है तभी भी व्हीकल यहाँ पे स्लिप नहीं होनी चाहिए. So to minimize the value of V minima, can you tell me what is the minimum value? Minimum value तो कितनी होती है? 0. So how can we get the value of V minima equal to 0? V minima की वैल्यू 0 करने के लिए इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? You can check here. The equation contains tan theta minus mu. So in numerator we know, when in their calculation, in multiplication, when in one term is 0, then whole answer is 0. So when you put value of this mu s, अगर हमने इस mu s की वैल्यू, when you put value of mu s is equal to, if I am writing here, when you put value of
म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। म्यू एस की जगह पे अगर हमने tan थीटा पुट कर दिया तो क्या होगा, a tan थीटा होगा। tan theta is one already there, so tan theta minus tan theta will be 0. This whole term is 0. 0 upon anything will be 0. 0 multiplied by anything will be 0. So your answer will be 0. So when v minima is 0, we can write when mu s is equal to tan theta, then we will get v minima is 0. That means अगर इस रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू tan थीटा उतनी होती है, तो उसका मतलब व्हीकल का स्पीड 0 होगा। 0 होगा मतलब व्हीकल रेस्ट होगी, तभी भी व्हीकल इस तरफ स्लिप नहीं होगी। व्हीकल इस तरफ स्लिप, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू अब 0 आ रही है ना। मिनिमम वेलोसिटी इज 0 व्हेन v is equal to tan theta. That means vehicle is safe. That means vehicle will not slip in this direction with velocity equal to 0 when v is equal to tan theta. Okay, we have different cases. tan theta की वैल्यू अभी देखो, mu s is equal to tan theta. Second case is suppose mu s is greater than tan theta, and third case is mu s is less than tan theta. We have to check all these three conditions. We have checked mu s is equal to tan theta होता है तो क्या होगा, obviously when mu s is equal to tan theta, when mu s is equal to tan theta, we can write, we have v minima, value of v minima is 0. अभी when mu s is greater than tan theta, mu s की वैल्यू अगर tan theta से ग्रेटर होती है तो क्या होगा, अगर when mu s is greater than tan थीटा से सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब ये आंसर नेगेटिव आएगा। सो दिस होल आंसर इज नेगेटिव एंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, राइट ना। उसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन अगर म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, इतना फ्रिक्शन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या, व्हीकल यहाँ पे स्लिप नहीं होगी। व्हीकल स्लिप क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो स्लिपिंग को कौन अवॉइड करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो देयर विल बी सफिशिएंट फ्रिक्शन, दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली इक्वल टू tan theta which prevent this vehicle slip down in this direction. यहाँ पे इतना फ्रिक्शनल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो वो फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि उसकी वजह से एक व्हीकल इस तरफ स्लिप नहीं होगी। अभी अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू जो मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है उससे भी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो फ्रिक्शनल वैल्यू इस व्हीकल को इस तरफ स्लिप नहीं होने देगा ना। सो ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट when mu s is greater than tan theta, then even if velocity is 0, then vehicle will not slip down. So we have two conditions, mu s is equal to tan theta is also allowed, mu s is greater than tan theta is also allowed, or to get the v minima is equal to 0. So finally we got the condition mu s is greater than or equal to tan theta. Understood? इसका मतलब finally again I am telling you the लास्ट कंक्लूजन क्या है इसका, अगर इस म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हेन वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा, दैट मींस इवन इफ vehicle is at rest, that means the speed of vehicle is 0, vehicle will not slip down. व्हीकल का स्पीड अगर 0 भी होता है तभी भी व्हीकल इस तरफ स्लिप नहीं होगी। कब, when the coefficient of static friction is large मतलब वो कितना होना चाहिए, it should be greater than or equal to tan theta, कम से कम tan theta इतना होना चाहिए। tan theta से ज्यादा होगा तो अच्छा ही है, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन स्लिपिंग को अवॉइड करेगा। सो फाइनली वी गॉट दिस कंडीशन। सो रिमेंबर दिस कंडीशन while writing derivation, after getting this answer you should write this condition just after it. So this is the first condition. Now check for the second condition. Second condition के लिए हमने क्या बोला था, अभी second condition के लिए the vehicle moves with maximum velocity without skidding up. Skidding मतलब sleeping. अभी क्या होगा, speed of vehicle is very large.
व्हीकल का स्पीड बहुत लार्ज होगा, सो ऑब्वियसली देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द राइट साइड डायरेक्शन बिकॉज व्हीकल टेक्स टर्न्स ऑन द लेफ्ट साइड, व्हीकल लेफ्ट साइड की तरफ टर्न ले रही है, उसका मतलब सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहा तो होगा, सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ए वाला जो व्हीकल है, व्हीकल राइट की तरफ स्पीड होने की कोशिश करेगी, तो राइट की तरफ स्पीड नहीं होने देना है, तो उसका मतलब नाउ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर, फ्रिक्शनल फोर्स का अभी देखो व्हीकल इस तरफ स्लिप होने की कोशिश कर रही है, उसका मतलब स्लिपिंग को कौन अवॉइड करेगा, स्लिपिंग को अवॉइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, अंडरस्टूड? सो हियर with how much maximum speed we can drive over this inclined road so that vehicle can safely move over it, that means vehicle will not slip, vehicle will not skid. हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने स्पीड से जा सकते हैं तो व्हीकल स्लिप नहीं होगी, ओके, दैट इज द इक्वेशन Vmax का ये इक्वेशन है। अभी इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, Vmax की जो वैल्यू है वो हमें और ज्यादा करनी है, Vmax की वैल्यू हमें और बढ़ानी है, हमें बहुत ज्यादा, हम मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड से मतलब 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर इतने स्पीड से भी गए तभी भी ये व्हीकल इस तरफ राइट साइड में स्लिप नहीं होनी देनी है। सो व्हाट शुड बी द कंडीशन टू इंक्रीज द मैक्सिमम वेलोसिटी? सो यू कैन फाइंड दैट कंडीशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। How can you increase the value of Vmax? Vmax की वैल्यू बढ़ाने के लिए you can just check the equation. We know when value of denominator is very small, then whole value is very large. Denominator की वैल्यू अगर बहुत छोटी होती है तो टोटल वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू जो आंसर है वो तो बहुत ज्यादा होगा। You can check what is the minimum value. सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0. तो how can we get 0 in the denominator? Think. डिनोमिनेटर में 0 कैसे आएगा? सोचो, ये देखो यहाँ पे 1 है, when first value is 1, second value I am writing here 1 minus mu tan theta is the denominator. Obviously this is the 1, so whole this value should be 1. इस complete value को 1 लिखा तो 1 minus 1 0 होगा. So when that denominator is 0, denominator 0 होगा मतलब एक पूरा आंसर इंफिनिटी होगा, क्योंकि 1/0 इज द इंफिनिटी ना, तो उसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी इज इनफाइनाइट, वी कैन मूव विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, वेरी मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दिस कंडीशन विल अचीव। अगर ये कंडीशन मिलेगी तो हम Vmax बहुत बढ़ा सकते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर Vmax इज इक्वल टू इनफाइनाइट व्हेन, टेल मी Vmax की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? तब होगी जब 1 minus mu tan theta 0 होगा, उसका मतलब mu tan theta की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो टू गेट वैल्यू ऑफ mu tan theta is equal to 1, we know tan theta multiply by cot theta equal to 1 होता है। cot theta मतलब cot theta is the reciprocal of tan theta ना, सो उसका मतलब tan theta यही है। सो अगर हम इस mu की जगह पे 1/tan theta या mu की वैल्यू अगर हम cot theta पुट करते हैं, so when instead of mu, when you put cot theta into tan theta becomes 1, 1 minus 1 becomes 0, a 0 होगा, so Vmax will be infinity. Okay, so it is clear that for to get Vmax is equal to infinity, we should have mu is equal to coefficient of static friction should be is equal to cot theta. So this is the important condition. Understood? अगर इस इक्वेशन में म्यूबेस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो म्यूबेस की वैल्यू अगर tan थीटा और उससे ग्रेटर होती है तो वी कैन ड्राइव विथ वेरी स्लो स्पीड ओवर द इंक्लाइंड रोड सो दैट व्हीकल विल नॉट स्लिप इन दिस डायरेक्शन, व्हीकल इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं होगी व्हेन वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा मतलब उसका एग्जैक्टली उल्टा ले, tan थीटा का रेसिप्रोकल तो cot थीटा होगा, इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं होने देना है तो म्यूबेस tan थीटा उतना होना चाहिए मैक्सिमम, और इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं होने देना है तो डायरेक्शन इज चेंज हियर, डायरेक्शन चेंज होगा तो कंडीशन शुड बी चेंज, सो tan थीटा का यहाँ पे cot थीटा बन गया। यू कैन इजीली रिमेंबर दिस, अंडरस्टूड? नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, बट दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वी गॉट अप, नाउ वी नो, बट डू यू नो दिस coefficient of static friction is always less than or equal to 1?
स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होती है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. Okay, you can refer concept of friction from the topic of friction. Okay, so हमें ये पता है कि limiting force of static friction is always less than or equal to, sorry, by mistake I told you that coefficient of static friction is always less than or equal to 1. इससे वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. So obviously can you tell me म्यूविस की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होती है तो हमें थीटा की वैल्यू भी चूज करनी पड़ेगी. वी शुड चूज द वैल्यू ऑफ थीटा. हमें क्या करना है? हमें इस व्हीकल को सबसे ज्यादा स्पीड से भगाना है. ओके, विदाउट स्लिपिंग. तो व्हीकल को कितने ज्यादा स्पीड से घुमाना ड्राइव करना है? विद मैक्सिमम स्पीड. सो टू गेट मैक्सिमम स्पीड, बहुत जोर से बहुत ज्यादा स्पीड से व्हीकल चलानी है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा कम से कम कितना होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू अगर हमने उतनी पुट कर दी तो क्या होगा? फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन ड्राइव विथ वेरी वेरी मैक्सिमम स्पीड. सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. हमें अभी इससे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कैन यू टेल मी म्यूएस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. हियर इंस्टेड ऑफ म्यूएस वी कैन पुट cot theta because value of म्यूएस इज इक्वल टू cot theta we have taken here. So put value of that म्यूएस cot theta is less than or equal to 1. Do you know the graph of cot theta? Cot theta का ग्राफ कैसे होता है? So I am drawing the graph of cot theta here. See, this is the 0, this is the 90 degree. Okay, what is the value of cot 0, cot 0, cot 90? Value of cot 0 is infinity and value of cot 90 is 0. Cot 90 की वैल्यू 0 होती है और cot 0 की वैल्यू infinity होती है. Also we have cot 45 degree is equal to 1. So I am drawing the graph here. You can check here. Cot 0 is equal to infinity. So graph is like this. This is the graph of cot theta. You can observe here. This is the y-axis. This is the our original x-axis. This is the value equal to 1. Y is equal to 1. So you can check from just wait 1. So this is the angle 45 degree. So you can check here from 0 degree to 45 degree. 0 डिग्री से 45 डिग्री तक cot थीटा की जो वैल्यू है क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है. बट हियर वी वांट वैल्यू ऑफ cot थीटा लेस देन और इक्वल टू 1. सो यू कैन चेक फ्रॉम विच 45 डिग्री टू 90 डिग्री. 45 डिग्री से 90 डिग्री तक cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 तक होती है. अंडरस्टूड? सो फ्रॉम द एंगल 45 डिग्री टू 90 degree the value of cot theta is less than or equal to 1. So I am writing here, therefore it is clear that theta should be equal to less than or equal to 40. Sorry, from 45 degree to 90 degree na. So theta should be greater than or equal to 45 degree. Understood? So I am writing here, therefore theta should be greater than or equal to 45 degree. Understood? When you take value of theta is greater than or equal to 45 degree तो क्या होगा? You can check here. अगर इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू, when एंगल ऑफ बैंकिंग की वैल्यू 45 डिग्री या उससे ज्यादा होती है तो क्या होगा? We can drive with very very maximum speed. ये तो बात क्लियर है. जितना इंक्लिनेशन ज्यादा होगा और हम जोर से क्या सकते हैं? व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं. So when you take, finally we got the condition to get maximum velocity over inclined surface over banked road, the mu base should be equal to cot theta. That means we should make angle theta greater than or equal to 45 degree. Then we can drive with maximum velocity. Okay, so you can compare this concept. Suppose this angle of inclination is large. When we are increasing the angle of inclination so that it becomes 90 degree. Vehicle is over this road and now vehicle is like this. So you can see here, this looks like well of death. वेल ऑफ डेथ में वेल ऑफ डेथ हमने देखा था ना कि वेल ऑफ डेथ में क्या होता है? व्हीकल ऐसे सर्कल में मूव होती है. सो इन दैट केस दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है? 90 डिग्री होता है.
ओके, सो यहाँ पे अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है तो व्हीकल हम कितने ज्यादा स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं? वी कैन ड्राइव विद वेरी वेरी लार्ज स्पीड। तो उसके लिए एक कम से कम मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। ओके, बट यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी अगर व्हीकल को हमने एक जगह पे स्टॉप कर दिया तो क्या होगा? व्हीकल को स्टॉप कर दिया तो व्हीकल में स्लिप डाउन इन दिस डायरेक्शन, व्हीकल नीचे की तरफ स्लिप होगी। सो देयर शुड बी सम मिनिमम वेलोसिटी। ओके, तो उस मिनिमम वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन तो ऑलरेडी उस टॉपिक में वेल ऑफ डेथ में कवर किया है। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि अगर वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज मोर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, देन वी कैन टेक एनी मैक्सिमम वैल्यू। दैट मींस हियर सपोज व्हेन यू drive this vehicle in veil of death with very very large speed, but that speed is greater than their minimum value. When that speed is very very large speed, automatically it will continue circular motion without falling, without any skidding. तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री के ज्यादा एंगल होता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री है। अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल होता है तो हम कितने भी जोर से स्पीड व्हीकल को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। कितने ही ज्यादा स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं, तभी भी वो स्लिप नहीं होगी। यहाँ पे भी हमने कितने भी ज्यादा स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से अगर व्हीकल को ड्राइव कर दिया तो व्हीकल स्लिप नहीं होने वाली। सो we got the condition number 2. Remember this condition number 2. We have to remember this. Okay. Now most safe speed. Most safe speed मतलब क्या होता है? This condition we have covered this condition at the beginning of concept of banking or board. We have started from the concept of most safe speed. Now when you watch that video, you will understand. Okay. So you I told you before just at the beginning of this lecture also you have to watch this video. You have watched the video on the banking of road. I have uploaded that video on YouTube. Okay. So here most safe speed. Most safe speed मतलब क्या होता है? इंजीनियर जब रोड डिजाइन करते हैं तो क्या होता है? वो इस बारे में सोचते हैं कि सेफ्टी के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। सेफ्टी के बारे में मतलब अगर व्हीकल उस कर्व रोड पे मूव हो रही है, ओके, तो व्हीकल स्लिप नहीं होनी चाहिए। तो व्हीकल स्लिप नहीं होनी चाहिए, तो टू अवॉइड स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए एंगल थीटा कितना होना चाहिए? बट अलॉन्ग विद द थीटा वी शुड कंसिडर फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें कंसिडर करना चाहिए। मगर ये बात तो है कि कभी कभी फ्रिक्शन भी जीरो हो सकता है। कभी कभी मतलब कब समटाइम्स देयर मे बी चांसेस इन रेनी सीजन due to the water spreading on the road, the friction becomes very very small. Also, कभी कभी रोड पे ऑयल स्प्रेड हुआ होता है। अगर ऑयल स्प्रेड हुआ होता है तो वहां पे भी फ्रिक्शन बहुत कम है। तो हम while designing road we should consider this condition. रोड ऐसे बनाएंगे फ्रिक्शन जीरो भी होने दो। फ्रिक्शन की वैल्यू अगर जीरो भी होती है तभी हम उस रोड पे कितनी स्पीड से व्हीकल चला सकते हैं। ओके, तो हमारे हाथ में क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट व्हीकल विल नॉट स्लिप ओवर द रोड व्हेन द फ्रिक्शन ऑन दैट रोड इज जीरो। उस रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी होने दो, कुछ भी एक्सीडेंटली होने दो, फ्रिक्शन जीरो होने दो, तो हम कम से कम कितनी स्पीड से उस व्हीकल को मूव कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर मोस्ट सेफ स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी ना। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो ओवर द इंक्लाइंड सरफेस ओवर द बैंक रोड। सो जस्ट वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन। इस कंडीशन में व्हेन यू पुट म्यूबियस इज इक्वल टू जीरो इन दिस कंडीशन, उसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन अगर हमने जीरो अज्यूम कर दिया तो हमें मोस्ट सेफ स्पीड मिलेगा ना। यहाँ पे क्या है? व्हेन फ्रिक्शन इज देयर आल्सो बैंकिंग इज देयर। फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी है। एट द बिगिनिंग ऑफ concept of banking of road we had seen what is the maximum speed on horizontal curve road। वहां पे हमने सिर्फ ये देखा था कि रोड को कर्व है, मगर जो रोड है यहाँ पे टर्न है, मगर रोड क्या है? रोड फ्लैट रोड है। फ्लैट मतलब हॉरिजॉन्टल है, ऐसे इंक्लिनेशन नहीं किया है। वो भी डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया था।
नाउ हियर मोस्ट सेफ स्पीड मतलब क्या है, रोड इज इंक्लाइंड बट फ्रिक्शन इज जीरो। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, इंक्लिनेशन भी है फ्रिक्शन भी है। दिस इज द फॉर्मूला applicable when there is a frictional force along with the inclination. Whenever there is only and only फ्रिक्शनल फोर्स, वहां पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है, एंगल ऑफ बैंकिंग जीरो है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था V max is equal to, just I am showing here now, when you put mu s is equal to 0 in this equation, what will be there, mu s is equal to 0, so this complete term is 0, 1 minus 0 तो 1 होगा, so denominator is 1, we can ignore that 1 from the denominator, so what left in the numerator, अभी हम denominator को ignore कर रहे हैं, so what left in the numerator, in numerator I have considered mu s is equal to 0, so then you put 0 plus tan theta, only tan theta is there, so tan theta and RC, only these three terms are left, so finally you can write RG tan theta, and this was the formula most safe speed that we had seen in the beginning of this topic condition, beginning of the concept of banking of road. अगर इस इक्वेशन में हमने म्यूएस की वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है। अगर सेम इक्वेशन में, इन द सेम इक्वेशन व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, सी हियर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, सो tan 0 is 0, so this complete value is 0, so in numerator there will be only mu s, okay, and अगर 0 यहाँ पे पुट कर दिया तो 0 tan 0 0, so second term 0, again denominator is 1, so you can ignore denominator, so what left in numerator, in numerator there will be only mu s, so equation is mu s rg, so I am writing here under root mu s rg, so 1 2 3, इसका मतलब क्या है, उस रोड पे इंक्लिनेशन भी है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। To solve numericals on this topic, remember this, when we apply this formula, when in given problem it is given that friction as well as angle of banking, this is our general case. टर्न पे हमने देखा है, टर्न पे बैंकिंग भी होती है और उस रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन भी होती है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। सो इसके दो कंडीशन बन गए, एक कंडीशन कौन सी, अगर उस रोड पे क्या है, उस रोड पे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, इंक्लिनेशन है मगर फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन 0 है मतलब mu s की वैल्यू 0 है, सो पुट mu s equal to 0 in this equation, by solving we got v max is equal to this, so this is the formula when there is only inclination but friction is 0, and here अगर रोड है और रोड फ्लैट रोड है, इंक्लिनेशन नहीं है, फ्लैट रोड है, इंक्लिनेशन नहीं है मतलब थीटा की वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इंक्लिनेशन है, यहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन है, सो फ्रिक्शन है मतलब इंक्लिनेशन 0 है, 0 है मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दे, सो वी गॉट दिस फॉर्मूला, सो वी हैव कवर्ड ऑल द कंडीशंस ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, सो this point is completed, okay, so next point I am starting now, you can pause the video and every time after completing the given topic you should pause the video and you have to note down all the topic in your notebook, okay, so after this one point is also left in the same topic, banking of road, इस banking of road में और एक कंसेप्ट हमने अभी तक किया नहीं है, नाउ वी विल कवर दिस टॉपिक हियर, द नेम ऑफ टॉपिक इज टॉपलिंग। व्हाट इज मीन बाय टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, टॉपलिंग मतलब व्हीकल ऐसे क्या होते हैं, टॉपलिंग गिरना, गिरना मतलब दिस इज द फ्लैट रोड, this is the horizontal surface, angle theta and vehicle is here, this is the vehicle, okay, so टॉपलिंग का मतलब क्या होगा, टॉपलिंग मतलब कभी कभी क्या होती है, अगर हम व्हीकल को जोर से ड्राइव करते हैं
तो इंस्टेड ऑफ स्लिपिंग व्हीकल क्या होती है, टॉपलिंग होती है। टॉपलिंग मतलब व्हीकल पलटती है, पलटना, पलटी होना। टॉपलिंग मतलब पलटी होना। कभी कभी क्या होता है, अगर हम जोर से व्हीकल को चलाते हैं तो कभी कभी व्हीकल स्लिप होने की जगह पे पलटी भी होती है। सो हियर इन दिस टॉपिक वी विल सी द कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। Okay, so when you drive, sometimes when you drive with maximum speed, more speed over the surface, then there is a case of toppling. Vehicle may topple. So in this topic we will see the condition of toppling over the flat road. Okay, हम flat road पे condition क्या होगी toppling की ये देखेंगे. So I am drawing the figure. This is your vehicle. These are the actually generally four-wheeler is there. So there are four wheels, four tires. Okay. So now there is a left side turn. Vehicle takes sudden left side turn. So we have to draw pre-body diagram. Before starting this topic, again I am telling you, watch the concept of or read the concept of banking of road. Read the concept of मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ओवर फ्लैट रोड। अगर फ्लैट रोड के ऊपर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे भी मैंने तुम्हें अभी देखा बताया था, वी मैक्स का फॉर्मूला जस्ट आई टोल्ड यू देयर वाज म्यू आर जी व्हेन एंगल थीटा इज 0 व्हेन देयर इज ओनली फ्रिक्शन। तो वी कैन मूव ओवर द फ्लैट रोड। इस फ्लैट रोड पे हम ज्यादा से ज्यादा इतने स्पीड से जा सकते हैं, तो उतने स्पीड से जाने के बाद भी व्हीकल क्या नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी। स्लिप मतलब स्किडिंग नहीं होगी, बाहर की तरफ वो स्लिप नहीं होगी। मगर इन दैट एलिवेशन वी हैड कंसीडर, आई एम रिपीटिंग द एलिवेशन आल्सो, देन यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज द केस। हमने एक्चुअली क्या किया था, फर्स्ट I will prove this condition and then I will take the concept of toppling here. Okay, so here suppose there is a left side turn like this. This is the road, there will be the center here. This is the center R. Okay, so this is the radius of the curvature, radius of the curved surface of the road. Now draw the free body diagram. Free body diagram means show all the forces acting on the vehicle. So one is the total force acting in the downward direction. Which is the force acting in the downward direction? Obviously weight equal to क्या होता है, mg ना. So mg is always acting in the downward direction. What is the direction of normal reaction? Normal reaction is always perpendicular to the surface. So यहाँ normal reaction क्या होता है, surface को perpendicular होता है. Left side direction, यहाँ पे vehicle takes left side turn. So due to which one force is acting on vehicle which push that object outside from the road, which is the centrifugal force. यहाँ पे देखो अभी vehicle circular path carry कर रही है, तो circular path में one force is there which always acting away from center. What is the name of that force? Just here you can see vehicle is taking left side turn. So how many forces are acting on the vehicle? One force is the gravitational force, which is the weight, which is acting in the downward direction. This is the normal reaction. Right side force is this is the circle. Okay, so we know when circular path is there, one force is always away from the center. That force is called centrifugal force. So here this is the centrifugal force. It is always in the non-inertial frame of reference. Okay, and which force avoid vehicle slipping? कौन सा force vehicle को slip करने के लिए avoid करता है? So there is friction. So we can show friction here. Okay, so what is the formula of friction? Friction is equal to limiting force of static friction is equal to mu s into n. Okay, so by solving you will get total upward force should be equal to total downward force. So total upward force is m, downward force is mg. Total inside force कितना है, mu s.
n equal to total right side force is mv square upon r. So you can check, you can just put the value of n. We got the value of n here, we have, so we can put value of n here. So I am writing mu s. What is the value of n? N is equal to mg equal to mv square upon r. M gets cancelled, r is divided, becomes multiplied, so you can write v square equal to, sorry, m gets cancelled, so what will v square, r यहाँ पे multiply होगा, so mu s rg. So finally I am writing v is equal to mu s rg square. Which was the formula? ये formula हमें कैसे आया था? So this is their explanation. Okay, but one thing is there, we have made a mistake there. Actually हमने यहाँ पे एक mistake की थी. वो mistake क्या थी? We have think only the forces acting on the body, but we have not think their rotational motion. Rotational motion मतलब हमने टॉपलिंग का कंसेप्ट यहाँ पे अज्यूम नहीं किया था. हमें पता है when total force acting on the body is equal to 0, then vehicle is at the rest. vehicle rest कब होती है? vehicle या कौन सा ही ऑब्जेक्ट हो एक जगह पे रुकता कब है? when total forces acting on the body is equal to 0, then vehicle or any object is at rest. But when unbalanced force is acting on it, कौन से भी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव होता है ना. ऑब्जेक्ट विल मूव विथ एक्सेलरेटेड मोशन. दिस इज द कंसेप्ट इन द लिनियर मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन का एक कंसेप्ट है. नाउ रोटेशनल मोशन, बॉडी रोटेट होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर रोटेशनल मोशन देयर शुड बी टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. डू यू नो दिस? टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड व्हेन टोटल नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर जो टोटल नेट टॉर्क होता है वो 0 होता है. सो बॉडी विल नॉट रोटेट. बॉडी रोटेट कब होगी? अगर उस बॉडी पे जितने भी कोई टॉर्क अप्लाई हो गए, उस टॉर्क का रिजल्टेंट अगर हमने फाइंड किया, व्हेन दैट रिजल्टेंट इज नॉन जीरो, रिजल्टेंट अगर 0 होता है, सो बॉडी विल नॉट रोटेट. अगर रिजल्टेंट टॉर्क 0 नहीं होता है, कुछ तो रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा, सो ऑब्वियसली बॉडी विल रोटेट. अंडरस्टूड? नाउ हियर एक्चुअली अगेन आई एम ड्राइंग द सेम फिगर. यहाँ पे शो ऑल द फोर्सेस. दिस इज द रोड. नाउ अज्यूम ऑल द कंडीशंस, पूरे के पूरे कंडीशन अज्यूम करो. ओके, यहाँ पे फर्स्ट शो ऑल द फोर्सेस. one force is the gravitational force, and as we know, all the gravitational force will acting from the center of mass of the given body. तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर बॉडी अगर होमोजेनियस है, मगर बॉडी अगर यूनिफॉर्म है अंदर से, तो उसका मतलब उसका वेट सभी जगह पे इक्वली कॉन्सेंट्रेट हुआ है. सो दिस विल बी द सेंटर. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग फ्रॉम एग्जैक्टली सेंटर. सो W is equal to mg. We have already shown it here. अगर उस व्हीकल में जो पैसेंजर बैठे हुए वो कहाँ दूसरी जगह पे, कुछ तो अलग अलग जगह पे बैठे हुए, तो मास एक ही जगह पे कहाँ पे है, तो इस वैल्यू ऑफ दिस द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डिफरेंट. अगर पैसेंजर इस तरफ ज्यादा बैठे हुए तो उसका मतलब सेंटर ऑफ मास उनका यहाँ पे होगा. अगर पैसेंजर इस तरफ ज्यादा बैठे हुए तो सेंटर मास यहाँ पे होगा. हमने यहाँ पे सोचा है कि सभी जगह पे इक्वल पैसेंजर अंदर बैठे हुए और कुछ तो लोड है, तो होल लोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द व्हीकल, सो दैट द सेंटर ऑफ मास इज एक्टिंग एग्जैक्टली फॉर द सेंटर. ओके, दिस इज द केस नंबर 1. केस नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल विथ परपेंडिकुलर. The direction of normal reaction is always perpendicular to the surface in contact. Remember this. अगर जहां पे contact in surface है उसको perpendicular normal का डायरेक्शन होता है. Actually here we had taken normal reaction from this point, but this point was not in contact with the surface. ना actually which part of the vehicle is in contact with the surface? This part only. Tires of vehicle, wheels of vehicles are in contact with the wheels of the vehicle are in contact with the surface, so that normal reaction will be from here and will be from here. यहाँ पे दो normal reaction हो गए.
क्योंकि रोड तो उस टायर को ऊपर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा ना. सो वन यू कैन अज्यूम दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. सो यू कैन से दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ए, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बी. Here we have taken normal reaction over there, but we should consider this. If अगर तुम्हें प्रॉब्लम सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम इसी टाइप का डेरिवेशन ड्राइव करोगे. मगर रिमेंबर दिस, व्हेन द कांसेप्ट ऑफ टॉपलिंग विल बी देयर, you should assume all the forces acting at that particular point. अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल लेफ्ट साइड फोर्स, टोटल राइट साइड फोर्स. That's why there the point at which forces are acting is not important at the time of translational motion, at the time of sweeping of the vehicle. Understood? So for translational motion, upward force, downward force, left side force, right side force, उसका मतलब point at which forces are acting is not important. But when in rotational motion, point at which force is acting is important. So we should draw the line of action of particular force at which actually the force is acting. So normal reaction हमने यहाँ पे लिखा भी थी. अभी नॉर्मल रिएक्शन पर्टिकुलर एक्चुअली जहाँ पे उस पॉइंट में मैंने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर दी. ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिमेनिंग फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस मास को क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा. सो यहाँ पे ऑब्वियसली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास. सो दिस विल बी द which force, centrifugal force. And frictional force, we have taken frictional force here, but actually friction is in between the road and tire. और road और tire के बीच में friction होगा ना. So here is the friction, here is the friction. अगर यहाँ पे vehicle right side को अगर skid हो रही है तो उसका मतलब क्या करेगा, friction उसको left side की तरफ क्या करेगा, attract करेगा, left side की तरफ खींचेगा. So it will avoid vehicle slipping. So actually this is the case. यहाँ पे एक्चुअली टॉपलिंग के लिए एक कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. टॉपलिंग के लिए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, टॉर्क का. सो फाइंड टॉर्क, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एट व्हिच दैट व्हीकल विल नॉट टॉपल. टॉपल मतलब व्हीकल क्या नहीं होगी, पलटी नहीं होगी. अभी मुझे बताओ यहाँ पे व्हीकल पलटी होगी व्हेन स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर देन सम वैल्यू. वी हैव टू फाइंड हाउ मच दैट मैक्सिमम स्पीड. Okay, so here you can see if vehicle is tending to take left side turn, vehicle left side पे turn ले रही है. So try to find torque. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर maximum speed है, you can see here, इसकी वजह से gravitational force की वजह से when we have to find torque in any one of the at any about the point. तो avoid when टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, कौन से भी पॉइंट की जगह पे अगर हमने टॉर्क लिया, व्हेन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, उसका मतलब देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन. सो वी शुड कंसीडर द मैक्सिमम वेलोसिटी एट व्हिच नो टॉर्क इज एक्टिंग. मैक्सिमम वेलोसिटी हम ले रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ले रहे हैं, उसका मतलब व्हीकल जस्ट टॉपल होने की कोशिश करेगी मगर टॉपल नहीं होगी. फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन यू इंक्रीज कंटिन्यूअसली वेलोसिटी, अगर हम कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ाएंगे, एक वेलोसिटी कुछ तो आएगी, तो उस वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी होगी तो व्हीकल क्या होगी, टॉपल होगी. और मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी होगी जिस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए व्हीकल टॉपल नहीं होगी, उसका मतलब नो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इज इक्वल टू 0. दैट मींस यहाँ पे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स, राइट साइड फोर्स ऐसे देखा था. तो यहाँ पे टॉर्क में क्या लिखना पड़ेगा, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. दैट मींस टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क व्हेन बैलेंस्ड बाय टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट मींस देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन, दैट मींस देयर विल बी नो टॉपलिंग ऑफ द व्हीकल. So to avoid toppling, we should assume the maximum velocity. So when you assume here the vehicle is moving with maximum velocity. अगर vehicle maximum velocity से move हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ this road will be like the, ये जो यहाँ पे जो व्हील है, ये वाला व्हील क्या करेगा, इस रोड को
जस्ट छोड़ने की कोशिश करेगा, जस्ट छोड़ने की कोशिश करेगा मतलब द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टायर विल नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, सो हियर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या हुआ, होल वेट ऑफ द व्हीकल विल बी कंट्रोल, विल बी बैलेंस्ड बाय दिस व्हील नंबर बी ओनली। पूरा का पूरा लोड इस व्हील नंबर बी की तरफ आएगा। अंडरस्टूड? क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ड्राइवर लेफ्ट साइड को टर्न ले रहा है तो उसका मतलब ए की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से all the passenger whole weight of the body will be moving in the right side direction, so obviously whole weight of the body will be carried by this B। तो ये तो बात क्लियर है कि बाहर की तरफ का जो टायर है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। एट द मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट जस्ट लीव करने की कोशिश करेगा, उसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, 0 होगी। सो लेट अस नाउ फाइंड हियर, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसका मतलब इसने जस्ट इस प्लेन को, जस्ट रोड को लीव किया है, उसका मतलब व्हीकल यहाँ पे टॉपल नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, उससे थोड़ा भी ज्यादा स्पीड बढ़ेगा तो व्हीकल टॉपल होगी। सो हियर वी विल फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हियर, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हियर। सो ऑब्वियसली टोटल क्लॉकवाइज फोर्स, क्लॉकवाइज torque should be equal to total anti-clockwise torque। Here vehicle will topple about point B, ये point B, यहाँ ऐसे vehicle क्या हो सकती है, topple हो सकती है। So which vehicle, which tire will leave the contact force, obviously अंदर वाला जो टायर है वो contact छोड़ देगा। तो यहाँ पे I am now deriving the equation total torque anti-clockwise torque, so I am writing here total clockwise torque should be balanced by total anti-clockwise torque, where इस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तो व्हीकल टॉपल नहीं होगी। ओके, सो दिस इज द फाइनल। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ what is the clockwise, clockwise मतलब this is the direction of clockwise। so what is the formula of torque, torque is the force multiplied by perpendicular distance। so here how many forces are acting in clockwise direction, this is the point B, so this direction is the clockwise, this is the clockwise, you can see here this is the W is equal to mg which is acting in anti-clockwise direction। RB passes through this, RB जिस पॉइंट से हम टॉर्क ले रहे हैं उसी पॉइंट से पास हो रहा है। सो ऑब्वियसली व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक फार्मूला ऑफ टॉर्क इज दैट फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आरबी का। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन फोर्स, पहले हम कौन सा टॉर्क लेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क लेंगे। सो व्हिच इज द क्लॉकवाइज टॉर्क, ये v स्क्वायर अपॉन r, फोर्स इज v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय, फोर्स कितना है v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स from the given point। what is the perpendicular distance, just assume this much perpendicular distance is equal to a, so force multiplied by perpendicular distance is a। so one force is completed, how many forces you can see here, 1 2 3, how many forces are there, हम कितने फोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, कितने फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस आल्सो देयर आर, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज नाउ विथ दिस टायर एंड दिस। So one force is completed, now second force कौन सा है, RB। here RB passing through center, RB तो सेंटर से ही उस पॉइंट B से पास हो रहा है। so पॉइंट B से RB का डिस्टेंस कितना है, 0 है ना, so 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, so neglect this RB लेने की जरूरत ही नहीं है। friction also passes through the, you can just extend this line, friction also passes through the same common point B, so उसका डिस्टेंस कितना है, 0, तो A वाला फोर्स भी निगलेक्ट करो। so what force is remaining, only this W equal to mg, but mg is acting in this direction, so this is the point B, assume this much distance is equal to small b, but this, when you assume this point B, this direction is now anti-clockwise direction, so clockwise torque is completed। so write which anti-clockwise torque, so force multiplied by perpendicular distance is the formula of torque, force कितना है mg मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg का b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b, सो b
Vmax. So solid, here we can see m gets cancelled. So what is the formula? This is the maximum velocity. V square max is equal to, what is there? G, R is divided becomes multiplied. So you can write R G B is numerator, R divide multiply होगा और A is multiplied becomes divide. So finally you can write V max is equal to under root R G B upon A. This should be the maximum velocity of vehicle due to which vehicle will not topple. When velocity of vehicle is more than this velocity, vehicle will topple. You can apply this concept at Bangalore Road in case of whale of death also. So बैंक रोड पे भी तुम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, वेल ऑफ डेथ पे भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो. एक्चुअली concept of toppling is not mentioned in main part of the textbook, so there will be no question on the toppling, but the concept of toppling may be asked in JEE examination. Okay, so you should prepare this concept along with sleeping also, along with skidding also. हमें रेगुलर HSC बोर्ड में क्वेश्चन किसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट विच द व्हीकल विल नॉट स्लिप, व्हीकल विल नॉट स्किड, व्हीकल कौन से मैक्सिमम स्पीड के लिए स्किड नहीं होगी, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे टॉपिक के ऊपर, मगर बट दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ डू यू नो दैट इज गिवन इन द ब्रैकेट इन योर टेक्स्ट. Okay, so you should have knowledge of this concept. That's why I have taken this concept of toppling here. Okay, so remember this. You can see the formula on which factor toppling depends. Maximum velocity का formula क्या है? R. When R is more, R अगर ज्यादा होता है तो Vmax is more. अगर रोड का कर्वेचर अगर ज्यादा होता है, रोड का कर्वेचर अगर ज्यादा होता है, सो वी कैन ड्राइव विद मोर स्पीड अवॉइडिंग टॉपलिंग. अगर हमने बहुत सडन अंदर के अंदर ही सडनली टर्न लिया तो उसका मतलब हमारे सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कम होगी. अगर सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कम होगी तो Vmax की वैल्यू भी कम होगी. उसका मतलब हम सेफली कम स्पीड से जा सकते हैं, है ना. अगर रेडियस बहुत ज्यादा है दूर से तो हम कितने भी जोर से जा सकते हैं. सो Vmax कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड. आल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. B का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ B टू इंक्रीज द, अगर हमें जोर से हाई स्पीड से रोड के ऊपर जाना है विदाउट टॉपलिंग, उसका मतलब विदाउट टॉपलिंग व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Vmax, द वैल्यू ऑफ B शुड बी लार्ज. वेयर इज द वैल्यू ऑफ B? B कहां पे? यहां पे B. उसका मतलब क्या है? जो अंदर के पैसेंजर है अगर बाहर की तरफ, ये देखो अगर लेफ्ट साइड पे टर्न ले रहे हैं हम तो ऑब्वियसली व्हीकल राइट साइड की तरफ क्या होगी, क्या कोशिश करेगी? टॉपल होने की कोशिश करेगी. तो पैसेंजर इनसाइड और लोड इनसाइड द व्हीकल शुड बी ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड. अगर व्हीकल के अंदर का जो लोड है अगर हमने लेफ्ट साइड में रखा है और लेफ्ट साइड की तरफ अगर हमने टर्न लिया तो क्या होगा? राइट साइड की तरफ व्हीकल टॉपल करने की जो कोशिश करेगी उसका स्पीड हम ज्यादा कर सकते हैं. सो टू अवॉइड टॉपलिंग फ्रॉम द राइट साइड वी शुड कीप वेट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल. अंडरस्टूड? अगर हमें लेफ्ट साइड की तरफ व्हीकल को टॉपल नहीं होने देना है तो हमें वेट राइट साइड की तरफ क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा. बट एक्चुअली इन घाट, डू यू नो व्हाट इज घाट? घाट में कैसे होता है? ऐसा zigzag रोड होता है. सो एवरी टाइम वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ लोड, so we should keep load equally inside the vehicle, okay, because there will be turn on left side also on the right side. So just remember this. when vehicle is large vehicle, different vehicle, अगर different vehicle होती है तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू व्हीकल पे, अगर व्हीकल ऐसी बड़ी व्हीकल होती है तो यहाँ पे क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी. अगर व्हीकल की हाइट, जस्ट थिंक व्हीकल की हाइट बहुत ज्यादा है, व्हीकल की हाइट बहुत ज्यादा है, उसका मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, ए की वैल्यू ज्यादा होगी. ए की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब क्या होगा? ये देखो, व्हेन ए इज लार्जर, ए की वैल्यू लार्ज होगी, उसका मतलब Vmax कम होगा. सो व्हीकल की हाइट अगर ज्यादा होती है तो हम
ज्यादा स्पीड से व्हीकल नहीं चला सकते। अगर ज्यादा स्पीड से व्हीकल चलाएंगे तो व्हीकल टॉपल होगी ना, ये तो क्लियर सी बात हुई कि देखो ना, व्हीकल की हाइट अगर ज्यादा होगी तो व्हीकल सडनली क्या होगी, टॉपल हो सकती है। सो व्हीकल सडनली टॉपल न होने देने के लिए हमें Vmax कम करना पड़ेगा। सो यू कैन फाइंड व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ V, obviously there will be automatically decrease the value of Vmax. So we have completed the concept of toppling here. After this concept, now this concept is completed, so I will start the next topic in the next video. Our next topic is conical pentagon. Okay, so if you have any doubt regarding this, you can ask all the doubt in comment box. Okay, so if you like this video, please subscribe my channel. Okay, so I am stopping the lecture.